السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن. میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ. اور لاسٹ ویڈیو کا جو ٹاپک تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ نماز وطر کا سنت طریقہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے سنت طریقہ. یہ ٹاپک تھا، لیکن میں نے کہا تھا نیکسٹ ویڈیو میں بناؤں گا. وہ ٹاپک ہوگا کہ نماز وطر کے اندر کون سا دعائے قنوت پڑھنا چاہیے جو سنت سے ثابت ہے، اور کون سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے دعائے قنوت جو نماز وطر کے اندر پڑھا کرتے تھے، کون سا تھا وہ. تو علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے آج کی، کیونکہ ہم نے جو بچپن سے پڑھا ہے وہ دعائے قنوت پڑھا ہے. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک. یہ پورا دعائے قنوت جو ہے ہم نے بچپن میں سکھایا گیا، ہمیں وطر کی نماز کے لیے یہ دعائے قنوت سکھایا گیا ہے. لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں دوسرا دعائے قنوت ملتا ہے پڑھنے کے لیے، کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ ہارڈ الفاظ یوز کیے گئے ہیں جو کہ اپنے اوپر بندہ رکھ کے بول رہا ہوتا ہے کہ میں ان چیزوں سے بچا ہوا ہوں، ان چیزوں سے. مطلب آپ آگے دیکھیں گے، میں کچھ ہائی لائٹس آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس ویڈیو سے ریلیٹڈ. تو کچھ ہائی لائٹس دیکھیں، پھر علماء کرام کی موقف کی طرف چلیں گے. محمد انس جے پور سے پوچھتے ہیں دعائے قنوت کی جگہ قنوت نازلہ پڑھنا کیا وطر میں دعائے قنوت کی جگہ قنوت نازلہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت والی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے تو آپ وہ معروف دعا پڑھیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک. حنفی حضرات پڑھتے ہیں جو دعائے قنوت، میں اس پر کانپ جاتا ہوں. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک. یہ جو کتنے بڑے بڑے دعوے، اے اللہ ہم تجھی پر توکل کرتے ہیں، تجھی پر ایمان رکھتے ہیں، تجھی سے استعانت کرتے ہیں. اتنے بڑے بڑے دعوے ہیں کہ آدمی کا دل کانپتا ہے. اگر وہ واقعتاً جو ہے اپنے آپ کو بھی دیکھ رہا ہو کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، کتنا کچھ توکل میرا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے. دعائے قنوت میں جو ہے مطلب اس میں کون سی دعائیں پڑھی جائے تو یاد رکھیں، عموماً جو ہمارے پاس جو دعا چلتی ہے وہ قنوت کے لیے، وہ دعا اس طرح سے ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک. وہ دعا ایک کامن ہے. لیکن جو سنت سے جو زیادہ قریب اور جو ثابت دعا ہے وہ یہ والی دعا ہے جو پڑھنی چاہیے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت. یہاں پہ ایک بابا جی ہیں، وہ جن کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا تھا اور وہ کہتے تھے ہم دین کو حکومتی لیول پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، بالکل ہماری بھی خواہش ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے جج، ڈاکٹرز، انجینئرز اتنے جاہل ہیں کہ ان سے دعائے قنوت بھی سنو تو دعائے قنوت نہیں آتی. تو میں نے ان کو ٹانٹ کروائی تھی کہ دعائے قنوت بابا جی آپ کو بھی نہیں آتی. آپ کے بابوں نے جو آپ کو دعائے قنوت سکھائی ہے وہ قنوت وطر کی دعا ہی نہیں ہے. سو دوستو آپ کے سامنے میں نے ہائی لائٹس پیش کر دی. علماء کرام کی موقف کی طرف چلتے ہیں. حناف کے درمیان جو موقف ہے وہ دعائے قنوت وہی ہے جو ہمیں بچپن سے پڑھایا گیا، وہی سکھایا گیا. اس کے علاوہ کوئی ہمیں نہ دعائے قنوت کی دعا کوئی بھی نہیں بتائی گئی ہے ہمیں. تو آگے چلتے ہیں، طارق مصطفیٰ صاحب کا موقف لیتے ہیں پہلے، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. محمد انس جے پور سے پوچھتے ہیں دعائے قنوت کی جگہ قنوت نازلہ پڑھنا کیا وطر میں دعائے قنوت کی جگہ قنوت نازلہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت والی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے تو آپ وہ معروف دعا پڑھیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک. وہ دعا پڑھیں، اس کے بعد یہ والی بھی پڑھ لیں اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، تاکہ دونوں دعائیں جمع ہو جائیں تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا. اور اگر صرف وہ دعا اس دعا پر اکتفا کریں تو احناف کے ہاں وہ والی دعا زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر یہ دعا بھی پڑھ لیں گے تو واجب ادا ہو جائے گا. تجارت میں بلکہ کوئی بھی دعا آپ پڑھ لیں، قنوت یعنی وطر کی جو آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے اس میں کوئی بھی دعا آپ پڑھ لیں گے تو جو دعا کا وجوب ہے وہ ادا ہو جائے گا. سنت موقدہ یہی ہے کہ مشہور دعا پڑھی جائے. صدر صاحب نے مفتی طارق مصطفیٰ صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے کہا کہ جو ہے دعا کوئی سی بھی پڑھ لیں آپ، لیکن بہتر یہی ہے جو ہمارے حناف کے نزدیک جو دعا ہے وہ ہے اللہم انا نستعینک والی دعا ہے، تو وہ بہتر مشہور دعا پڑھ لیں، وہی بہتر ہے. یہ آپ کے سامنے مفتی طارق مصطفیٰ صاحب نے موقف رکھ دیا. آگے چلتے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. حنفی حضرات پڑھتے ہیں جو دعائے قنوت، میں اس پر کانپ جاتا ہوں. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک. یہ جو کتنے بڑے بڑے دعوے، اے اللہ ہم تجھی پر توکل کرتے ہیں، تجھی پر ایمان رکھتے ہیں، تجھی سے استعانت کرتے ہیں. اتنے بڑے بڑے دعوے ہیں کہ آدمی کا دل کانپتا ہے. اگر وہ واقعتاً جو ہے اپنے آپ کو بھی دیکھ رہا ہو کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، کتنا کچھ توکل میرا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، تو آدمی ڈرتا ہے، کانپتا ہے. صحیح. اس سے وہ جو اہل حدیث حضرات پڑھتے ہیں
अल्लाहुम्मा अहदिना फीमन हदैत व आफिना फीमन आफैत व तवल्लना फीमन तवल्लैत, ये दुआ है। ऐ अल्लाह हमें आफियत बख्श दे, हमें हिदायत बख्श दे। वो तो कोई हर्ज नहीं इसके कहने में। दुआ जितनी चाहो मांगो, अल्लाह से जितना चाहो मांगो, वहां कोई सी लिमिट की जरूरत ही नहीं। लेकिन ये दावे करना इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्ली लकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुका, कितना बड़ा दावा है। जो भी तेरी नाफरमानी करता है हम उससे ताल्लुक मुनक़ता कर लेते हैं। कितने लोग हैं जो ताल्लुक मुनक़ता करते हैं। हमारी दोस्तियां जू की तू रहती हैं, हमारी मोहब्बतें जू की तू रहती हैं, हमारी मजलिस आराइयां जू की तू रहती हैं। सही। फुसाक भी है, फुज्जार भी है, अल्लाह के अहकाम को तोड़ने वाले भी। नखलाओ व नतरुकु मन यफजुरुक, अल्लाह हम छोड़ देते हैं, कता ताल्लुक कर लेते हैं उन सब से जो तेरे अहकाम की नाफरमानी करे। कौन है जो आज इसके ऊपर पूरा उतरता हो? बिल्कुल वही बात यहाँ है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। परवरदिगार, ये बहुत बड़ा दावा है जो हमने कर दिया, बहुत बड़ा अहद और मीसाक किया है। ये कॉवेनेंट जिसको कहा जाता है, कॉवेनेंट है, ये मीसाक है। अल्लज़ी वासक़कुम बिह, अल्लाह ताला ने तुम्हें जकड़ लिया है एक मीसाक के अंदर, एक अहद के अंदर। इस अहद को तुम ताज़ा करते हो हर रकात, नमाज की हर रकात में। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, एंड दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये अल्लाह की हम्द व सना है, जितनी चाहो कर लो, लेकिन तेरी ही बंदगी करते हैं और करेंगे। ये बहुत बड़ा दावा है, बहुत बड़ा इकरार है, बहुत बड़ा कॉवेनेंट है, बहुत बड़ा मीसाक है, बहुत बड़ा अहद है। इसमें हम ए अल्लाह पूरे नहीं उतर सकेंगे मगर तेरी मदद से, तेरी ताईद से, तेरी तौफीक से, तेरी तहसील से। इय्याका नस्तईन। सो दोस्तों, आपने डॉक्टर इसरार अहमद साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने कहा कि जो दुआए क़ुनूत हनाफ के दरमियान है उसके अंदर जो उसका जो तर्जुमा है वो इस तरह है कि आप अपने हवाले से आप बात कर रहे हैं और हम उससे कड़ियतें ला ताल्लुकी कर लेते हैं जो भी तेरी नाफरमानी करता है। इस तरह से लोग मतलब इतनी हार्ड दुआ है ये। तो डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने कहा कि इस दुआ से अहले हदीस जो दुआ पढ़ते हैं वो ज़्यादा बेहतर है। तो आगे चलते हैं, एडवोकेट फैसकी साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं सवाल। क़ुनूत के अंदर जो है कौन सी दुआएं पढ़ी जाए, ठीक है, दुआए क़ुनूत में जो है मतलब इसमें कौन सी दुआएं पढ़ी जाए, तो याद रखिए उमूमन जो हमारे पास जो दुआ चलती है वो क़ुनूत के लिए, वो दुआ इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, वो दुआ एक कॉमन है। लेकिन जो सुन्नत से जो ज्यादा करीब और जो साबित दुआ है वो ये वाली दुआ है जो पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा दीनी फीमन हदैत व आफिनी फीमन आफैत। इंशाअल्लाह जो लोग नेट पर इसको देखेंगे, दुआ आपके वीडियो के अंदर जो है बैकग्राउंड में आ जाएंगी, आप उस पे से देखकर याद कर सकते हैं। ठीक, ये दुआ उन्होंने दिखा दी एडवोकेट फैसकी साहब ने। ये दुआ है, आप ये दुआ पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, याद करें इसको और अपनी वितर नमाज के तो ये दुआ ज्यादा बेहतर है। और वो अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व वो जो दुआ है उसके ताल्लुक से एक रिवायत आती है कि अल्लाह के रसूल वो फजर की खुनूत में पढ़ा करते थे वो दुआ, वितर की खुनूत में नहीं। वितर की दुआ नहीं थी, वो फजर में करते थे। जब खुनूत नाज़िला आप कभी फजर में पढ़ते तो ये पढ़ते, और जब वितर में पढ़ते तो ये पढ़ते। लेकिन हजरत हसन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुनूत खुद सिखाया था, अल्लाहुम्मा दीनी फीमन हदैत वाला। समझ, अब बहुत सारे लोगों को ये याद होता है अल्लाहुम्मा दीना फीमन हदैत, वो जमा का सेगा है, लेकिन असल हदीस में अल्फाज दीनी के, अल्लाह मेरे लिए हिदायत और मेरे लिए। लेकिन जब वो इज्तिमाई में आलिम करता है तो दीना कर देता है, अल्लाह हमारे लिए। ठीक, लेकिन असल के हदीस के अल्फाज तो दीनी वाला ही है, पूरा सिंगुलर ही है वो दुआ, प्लूरल में नहीं है वो दुआ जो सिखाई गई। ठीक है, तो ये दुआ जो है ज्यादा बेहतर ये इंशाअल्लाह। और बहुत सारे उलमा ने ये भी कहा कि अल्लाहुम्मा दीनी फीमन हदैत भी कोई चाहे तो पढ़ ले, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्त, ये दुआ भी चाहे तो पढ़ ले, दोनों मिला के पढ़ ले, कोई मसला नहीं। सही समझ रहे बात को, ये भी पढ़ ले ये भी पढ़ ले, दोनों में कोई मसला नहीं। लेकिन ज्यादा जो बात पता चलती है मुहद्दिस के अखवाल से वो ये है कि आप सब वित्र में ये पढ़ते थे और फजर के खुनूत नाज़िला में ये वाली अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, ये दुआ जो है फजर के खुनूत में पढ़ा करते थे। लेकिन अगर कोई पढ़ना चाहे तो दोनों भी मिलाकर पढ़ सकता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ दुआ की भी वजाहत हो गई,
एक्स्ट्रा रफ़ैदैन इसके अंदर नहीं है। आपको सिर्फ डायरेक्ट आपने किया दुआ कर लेना, ऐसा कीजिए, या मतलब हाथ खोल के कीजिए, हाथ बांधे हुए में कीजिए, रुकू से पहले मतलब क़याम में कर लीजिए, रुकू के बाद आप दुआ कीजिए, सारी चीज़ें बहरहाल साबित है। और दोनों भी खुनूत मैंने आपके सामने रख दी। खुनूत चूँकि दुआ है, दुआ हाथ उठाई जा सकती है, और ये खुनूत ज़्यादा करीब है सुन्नत से। लेकिन ये बात भी पता चलती है कि आपने फजर में वो पढ़ा, लेकिन कुछ उलमा लिखते हैं दोनों भी दुरुस्त है, पढ़ लेने में इंशाअल्लाह, इसलिए कि ये खुनूत है और खुनूत है, दुआ है, आप कभी भी पढ़ सकते हैं, तो लिहाजा वो कहते हैं दोनों पढ़ लो, कोई मसला नहीं इंशाअल्लाह। ठीक है, तो ये था उसका तरीका और दुआ। अली सो दोस्तों, आपने एडवोकेट फैज़ साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने कहा कि दोनों दुआए कुनूत भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, नमाज ईशा के बाद जो वितर पढ़ी जाती है उसके अंदर दूसरा दुआए कुनूत साबित है, वाला दुआए कुनूत साबित नहीं है, वो फजर की वितर के अंदर पढ़ा करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे चलते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। भाई अगला सवाल है, अली भाई ने कई एक लेक्चर्स में ये बात इशारतन की है कि हमारे हनफी भाई जो दुआए कुनूत पढ़ते हैं वो दुआ कुनूत वितर की दुआ नहीं है बल्कि कुनूत नाज़िला की दुआ है। प्लीज़ मेहरबानी फरमा कर कुनूत वितर की मसनून दुआ मेंशन कर दें और इसका मुकम्मल रेफरेंस भी दे दें ताकि हम जल्द अज जल्द उस दुआ को याद करके अपनी नमाज की इस्लाह कर सकें। शुक्रिया। अच्छा, ये इन्होंने सवाल किया इशारतन, मुझे समझ आया शरारतन। ये इशारतन उन्होंने कहा है। इशारतन मैंने वाकई जिक्र किया, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे एक बाबा जी हैं, वो जिनका एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ था और वो कहते थे हम दीन को हुकूमती लेवल पे नाफिज करना चाहते हैं, बिल्कुल हमारी भी ख्वाहिश है। फिर उन्होंने कहा कि ये तो हमारे जज, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स इतने जाहिल हैं कि इनसे दुआए कुनूत भी सुनो तो दुआए कुनूत नहीं आती। तो मैंने उनको टॉन्ट करवाई थी कि दुआए कुनूत बाबा जी आपको भी नहीं आती, आपके बाबों ने जो आपको दुआए कुनूत सिखाई है वो कुनूत वितर की दुआ ही नहीं है, वो तो कुनूत नाजिला की दुआ है जो काफिरों पर बददुआ की जाती है। चाहे आप वो वितर में कर लें, चाहे फर्ज नमाज की आखिरी रकत में रुकू के बाद, कुनूत नाजिला के तौर पर। लेकिन जो कुनूत वितर हम इशा की करते हैं वो तो हम रुकू से पहले करते हैं, क्योंकि सही बुखारी में हदीस है कि जिसने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम ने रुकू के बाद वितर की यानी दुआ मांगी तो वो झूठा है। नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ 1 महीने रुकू के बाद मांगी थी जो कुनूत नाजिला थी, आप रुकू से पहले हमेशा मांगा करते थे। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर है इसका 1002, अनस बिन मालिक से रवायत है। तो कुनूत वितर की दुआ जो है वो रुकू से पहले होती है सही, और दोनों तरीके से सुन्नत है। आप सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाने के बाद अल्लाह अकबर कह के हाथ बुलंद करें और दोबारा से हाथ बांध लें और दुआ कुनूत पढ़ें, या सूरत मिलाने के फौरन बाद साथ ही दुआ कुनूत पढ़ लें। और इसके लिए दुआ कुनूत कौन सी? जो दुआ कुनूत नबी इस्लाम ने कुनूत वितर के तौर पर तालीम फरमाई है, वो है जामिया तिरमिज़ी में, सुनन नबी दाऊद में, सुनन निसाई के अंदर, कि हसन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा व अलैहिस्सलाम, सैयदना हुसैन के जो बड़े भाई थे, वो कहते हैं कि मुझे नबी इस्लाम ने नमाज वितर में पढ़ने के लिए कुनूत तालीम की और मैं वही कुनूत पढ़ता हूँ, और वही कुनूत वितर की दुआ है जो इस वक्त सिर्फ अहले हदीस पढ़ते हैं या अरब के लोग पढ़ते हैं। सब कॉन्टिनेंट में तो कुनूत नाज़िला ही चल रही है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका। ये कुनूत वितर भी याद करें, कई लोगों ने बूढ़ी उम्र में जाके ये दुआ याद की है। जिसको दुआ कुनूत नहीं आती वो अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार पढ़ रहे, ठीक है, जब तक दुआ याद नहीं होती नमाज उसकी हो जाएगी। बात कहते हैं 3 दफा कुल शरीफ पढ़ लो, नाल एक बार फातिहा पढ़ के भी बख्श दो। कुल शरीफ नहीं, वो दुआ की जगह दुआ लेगी। दुआए वितर नहीं आती तो सूरह इखलास क्यों पढ़नी है? दुआ ही पढ़नी है आपने। सही। तो कुनूत वितर जो है वो आपको जामिया तिरमिज़ी, अबू दाऊद, सुनन निसाई, इब्ने माजा में मिल जाएगी, और आपको मिशकातुल मसाबी के पहले जिल्द के अंदर वितर वाले चैप्टर में मिल जाएगी। हसन इब्ने अली ने वो नबी अलैहिस्सलाम से सीखी थी। अल्लाहुम्मा हदीनी फी मन हदैत, अल्लाह मुझे हदायत देने के बाद अपने हदायत याफ्ता लोगों में शामिल कर ले। हाय हाय हाय। वाफिनी फी मन आफैत, और मुझे आफियत अता फरमा के अपने आफियत वाले लोगों में शामिल कर ले। और सुनन इब्ने माजा में हदीस है कि किसी शख्स ने अल्लाह से आफियत से बढ़कर कोई दुआ नहीं मांगी। नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि दुनिया में सबसे नंबर 1 दुआ क्या है? अल्लाह से आफियत मांगना, कि अल्लाह मेरे लिए हर काम में बेहतरी फरमाना। आमीन। बेशक आपके सुबह शाम के अज़कार में वो दाऊद में वो हदीस भी है ना,
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफियत फिद दुनिया वल आखिरह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफियत फी दीनी व दुनियाया व अहली व माली। ये वाली दुआ मुख्तलिफ अल्फाज के, यानी तिरमिज़ी अबू दाऊद में थोड़े बहुत फ़र्क से मिलती है, हमारे ब्लू कार्ड में लिखी हुई है, तो उसमें भी आपने आफियत मांगी है। अल्लाहुम्मा हदीनी फी मन हदैत व आफिनी फी मन आफैत व तवल्लनी फी मन तवल्लैत, और मुझे अपना दोस्त बना ले और अपने दोस्तों में शामिल कर ले। सुभान अल्लाह। व बारिक ली फी मा आतैत, और जो तूने मुझे दिया है ना उसमें बरकत अता फरमा। वक़िनी शर्र मा क़दैत, और मुझे उस शर से बचा ले जो तूने मुकद्दर रखा हुआ है, क्योंकि शर भी तो अल्लाह ही ने पैदा किया ना। मिन शर्रि मा खलक, मैं हर उस चीज की बुराई से तेरी पनाह में आता हूं जो तूने ही पैदा की है। शैतान को किसने पैदा किया? अल्लाह। फ़इन्नक तक़दी वला युक़दा अलैक, बस बेशक तेरे कब्जे इख्तियार में हर चीज है जो तू फैसला कर दे, तेरे फैसले के खिलाफ कोई फैसला नहीं कर सकता। इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत, बेशक वो कभी भी जलील नहीं हो सकता जिससे तू दोस्ती कर ले। वला यइज़्ज़ु मन आदैत, और वो कभी इज्जत वाला नहीं हो सकता जिससे तू दुश्मनी कर ले। बेशक। तबारकत रब्बना व तआलैत, मेरा रब बड़ी बरकत वाला है, बड़ी ऊंची शान वाला है। बेशक। ये अल्फाज जो सही सनद से साबित है। बाकी ये है कि एक सुन्नसाई में हदीस है, उसकी सनद कमजोर है कि इसके बाद नबी इस्लाम दुरूशी पढ़ते थे, लेकिन फदलुस सलाती अलन नबी के अंदर जो दुरूद शरीफ की पहले 300 साल में लिखी गई किताब है काजी इस्माइल मालकी रहमहुल्लाह ताला की, अल मुतवफ़ा 287 हिजरी, उसमें आपको सही सनद से रवायतें मिलेंगी कि सहाबा इकराम ताबईन दुरूद शरीफ भी पढ़ा करते थे दुआ कुनूत के बाद। इवन सही इब्ने खुज़ैमा में मिलेगा कि उबई इब्ने काब जब रमजान में कुनूते वित्र करवाते थे और कभी कुनूते नाज़िला भी उसमें साथ पढ़ते थे, तो पीछे असहाब आमीन आमीन भी कहते थे और वो उसका एंड दुरूद शरीफ के ऊपर करते थे। तो ये जो कहते हैं ना हम दुरूद वाले हैं, बारूद वाले नहीं है, अल्लाह के फजल उन्होंने कहते दुरूद पढ़े ही नहीं है कुनूते वित्र, क्योंकि बाबा जी ने नहीं सिखाया। सर दुरूद है, और जनाजे में भी वो अपना एक लिखा हुआ दुरूद पढ़ते हैं, जनाजे में भी दुरूद इब्राहिमी है और फातिहा पढ़ते ही कोई नहीं। जनाजा करवाते हैं 30 सेकंड का, दुआ मांगते हैं 30 मिनट की। हालांकि जनाजे में तो वो सारी दुआएं मांगनी चाहिए जो सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, वो आती नहीं है इनको। सूरह फातिहा भी नहीं पढ़ते, वो सना पढ़ते हैं, वो भी उन्होंने एक बीच में लुच तला हुआ है, वजल्ला सनाऊ का याद करा दें, वजल्ला सनाऊ का। खैर बात फिर और तरफ चली जाएगी। तो ये दुआ कुनूत है, उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, इतना भी पढ़ सकते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सो दोस्तों सारे उलमा कराम का मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दिया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने भी मौक़िफ़ आपके सामने पेश किया और पूरी दुआ पढ़ के बताई और उसका तर्जुमा भी आपको साथ साथ बताया। तो कुरान हदीस की रोशनी में ज़्यादा करीब जो है और अफजल दुआ यही है जो एडवोकेट फैसी साहब ने, इंजीनियर साहब ने और डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने आपके सामने रखी। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे, आप भी सदके जारिया में शामिल हो जाएं। और सारे उलमा कराम का मौक़िफ़ पेश करने का मकसद ये होता है कि आपके माइंड तक नॉलेज पहुँचे और उसके ज़रिए आप हक बात तक पहुँच सकें। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी ये होगी नमाज जनाजा से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नमाज जनाजा का तरीका नहीं पता होता। पीछे खड़े होते हैं नमाज जनाजा के अंदर, लेकिन कुछ भी नहीं पता होता उनको कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, सिर्फ शामिल हो जाते हैं और खड़े रहते हैं जब तक मौलवी साहब जो है सलाम ना फेर दें। सलाम फेरते ही फिर अपने कामों में लग जाते हैं, लेकिन उनके माइंड में नॉलेज नहीं होती। मैं आपको तरीका बताऊंगा, सुन्नत तरीका क्या है नमाज जनाजा का और किस तरह पढ़नी चाहिए, क्योंकि कुछ उलमा कराम कहते हैं कि सूरह फातिहा नहीं होती, लेकिन ये है हदीसों में मिल जाएगा आपको कि फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। नमाज जनाजा में भी सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए। सना के अलावा सूरह फातिहा पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद जो मैयत की दुआ होती है वो पढ़ें। नाबालिग बच्चा बच्ची जिस हिसाब से है बड़ों की उस तरीके से दुआएं याद कर लें। तो फिर भी नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू
मिल गया सबको तू सबका तो हो रहनुमा